Namaskar and welcome once again to Doctors Speak. This is the program where we put you in touch with doctors and they answer your questions specifically with regard to COVID-19, how to deal with the situation, how to keep yourself safe from getting this infection as you go out and interact in the real world, because you have been, living a life of some sort of isolation, but you have to keep safe distancing. You have to continue to wear a mask. You have to wash your hands at all times and see that you don't get this virus, because we still don't have a vaccine. We still don't have a proper identified treatment that we can say is official and it works. But we are getting the results in the sense that we have a very high recovery rate and we also have a low fatality rate. My name is Mark and with me is Jyotika. शुक्रिया मार्क। नमस्कार, डॉक्टर स्पीक में आप सभी का स्वागत है और ये आधे घंटे का लाइव फोन इन शो है। आप कोविड-19 से जुड़े अपने कोई भी सवाल हमसे शेयर कर सकते हैं। ये नंबर्स आपकी स्क्रीन पर अभी कुछ ही देर में फ्लैश होंगे और हम आपके सवाल ले चलेंगे अपने एक्सपर्ट्स तक और वो आपके सवालों का जवाब देंगे। आप फेसबुक के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने सवाल हमसे कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर रूपाली मलिक जुड़ गई हैं, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन VMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल से। नमस्कार डॉक्टर रूपाली, स्वागत है आपका डॉक्टर स्पीक में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर रूपाली, शुरुआत करना चाहेंगे जिस तरह से हम अपनी रिकवरी रेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हमारी जो डेथ रेट है वो काफ़ी कम हो गई है और दुनिया में हम अपने अगर टेस्ट्स की रेशो की बात करें तो बहुत जल्द हम अमेरिका को भी पीछे छोड़ जाएंगे। और ये जो टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट में जो टेस्टिंग और ट्रेसिंग की बात बार बार की जा रही है कि अगर हम आगे बढ़कर अपना टेस्ट कराते हैं, अगर हम सिम्टम्स को महसूस करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ना सिर्फ हमारे अपने लिए बल्कि हमारे आसपास के लिए, समाज के लिए, ओवरऑल देश के लिए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये कोविड की लड़ाई में शुरुआत से ही 3T की बहुत ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता रही है। 3T यानी कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड ट्रीटमेंट। तो शुरू से ही इन तीनों की वजह से आज अगर हम देखें, भले ही नंबर बढ़ रहे हैं बट फिर भी अगर देखा जाए, फैटेलिटी की बात की जाए, मोर्टालिटी रेट की बात की जाए, अभी भी चीजें काफी हद तक हमारे पक्ष में हैं। तो अभी हमें पॉजिटिव साइड को ज्यादा आगे रखना होगा कि हमारा रिकवरी रेट अच्छा है। ज्यादातर लोग, लगभग 80 से 90% लोग अपने आप स्पॉन्टेनियसली रिकवर कर जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव साइन है, इसी को हमें सबसे आगे रखना है। और टेस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि शुरू से बात हो रही है एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स को लेके। तो जितना ज्यादा टेस्ट होगा, जितना ज्यादा ट्रेस होगा, उतना ज्यादा हम ये एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स को कवर कर पाएंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस स्टेज पे जबकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है, नंबर्स डेली बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं। Right, Dr. Rupali Malik, the WHO is concerned that in the northern hemisphere now the winter is going to approach, and already the number of cases are increasing and they are likely to, of course, go much faster once the winter comes in if we don't have a vaccine by then. So they have suggested that people who have some sort of comorbidities and all that can actually take a flu vaccine to prevent them from getting the flu. Is that advisable? Yes, definitely. As such, also flu vaccine should be given to all the high-risk individuals, especially those above the age of 60 years who are diabetics. So these people should always have their flu vaccine shots each year before the winters come. The flu vaccine will protect you against the influenza infection in a range of around 20 to 70%. So we don't have 100% protection even with the flu vaccine, but still it can provide you a protection of up to 70%. And next 6 months is a very, very critical time for all of us. As you have just mentioned, winters are arriving. So not only coronavirus, so many other respiratory viruses like flu, influenza, and so many others, their numbers will also start to increase. So it is very important that whatever vaccines we have to prevent whichever respiratory viral infections, we should definitely go ahead with that. There were some reports suggesting that flu vaccine can even protect against coronavirus. As of now, we don't have any definite evidence for that. There was a study in Brazil of around 90,000 patients where they suggested that patients who have received a flu vaccine shot in recent times, they have better outcomes with COVID-19 as well. But still, as of now, it is not very much proven.
But at least what it will do that we definitely know is it will protect you against influenza. And sometimes patient can have these multiple viruses existing in them. So they can have coronavirus as well along with the flu virus. So at least if you're protected against one, your chances of recovery will be much better. So it is really important for all of us to have, especially the high risk individuals, the flu shots. जी डॉक्टर रूपाली, हमारे पास ऑनलाइन सवाल आने शुरू हो गए हैं। सोनल वर्मा जी पूछना चाह रही हैं कि इज इट कंपल्सरी दैट ऑल विल हैव दिस इन्फेक्शन? अगर इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव भी देखा जाए, अब अनलॉक 4 की पोजीशन में हम पहुंच गए हैं, चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मेलिटी की ओर बढ़ रही हैं, मेट्रोज में आना जाना लोगों ने शुरू किया है, अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो ऑन, तो कैसे देखती हैं आप इस इन्फेक्शन के फैलने को और ज़्यादा, और किस तरह से और ज़्यादा अब एहतियात रखने की ज़रूरत है? देखिए, इस समय पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमें जो बचा सकती है इस इन्फेक्शन से अभी भी वही है सोशल वैक्सीन, सोशल डिस्टेंसिंग, 1 से 2 मीटर का डिस्टेंस बना के रखना, मुंह और फेस को कवर करके रखना, नाक को कवर करके रखना, अगर आप घर से बाहर निकलते हैं मास्क को पहनना जरूरी है और हाथों को धोते रहना। तो ये जो सोशल वैक्सीन जो है अभी भी ये सबसे बड़ा हथियार है हम लोगों के पास इस बीमारी से लड़ने के लिए और इससे अपने आप को बचाने के लिए। और जहां तक कि जैसे आपने पूछा कि कितने लोग इन्फेक्ट होंगे, क्या सब लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि 60 से 70% लोग अगर एक कम्युनिटी में जब इन्फेक्ट हो जाते हैं तो ट्रांसमिशन ब्लॉक हो जाता है, उसके बाद हर्ड इम्यूनिटी अचीव हो जाती है। तो लगभग 60-70% तक इन्फेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट हमारी जनसंख्या इतनी बड़ी है, अगर उसमें 60 से 70% लोग इन्फेक्ट होंगे तो नंबर्स विल बी रियली हाई। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि अपने आप को बचाए रखना है ताकि तब तक वैक्सीन आ जाए, तो वैक्सीन की वजह से कुछ इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। ऑलरेडी 30% के करीब मेट्रोज में ऑलरेडी इम्यूनिटी है, तो थोड़ा ये भी नंबर्स बढ़ेंगे टाइम के साथ। तो अगले कुछ महीने बहुत ही क्रूशियल है टिल दी विंटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए समझना। डॉक्टर रूपाली, जैसे कि डे बिफोर यस्टरडे मार्क, जैसे कि हेल्थ मिनिस्ट्री की पीसी आई थी, आईसीएमआर का कहना था कि जो लोग रिकवर हो चुके हैं वो एकदम से बेखौफ ना होकर घूमें और इस तरह से प्रिटेंड ना करें कि अब वो कोरोना वॉरियर हो गए, अब उन्हें दोबारा इन्फेक्शन नहीं हो सकती है, दे हैव फॉट दिस बैटल एंड दे हैव वन द बैटल। तो हालांकि ऐसे केसेस का भी क्या आंकड़ा है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन हमें लापरवाह नहीं होना है आईसीएमआर के मुताबिक। आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, देखिए कोविड की लड़ाई में जो सबसे बड़ा हथियार हमारे पास है वो है अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। शुरू से बताते आए हैं कि कोविड के अगेंस्ट ये जो जंग है ये केवल ना सरकार की ना केवल देश की, ये पीपल्स वॉर है। तो हर इंडिविजुअल को अपना रोल रिस्पॉन्सिबली प्ले करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाना है। अगर आपको कोरोना इन्फेक्शन होकर आप रिकवर हो चुके हैं, उसके बाद भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये सब एहतियात बरतें ताकि आपको री इन्फेक्शन ना हो, जिसमें कि अभी तक इस बारे में कोई प्रूवन फैक्ट्स नहीं है कि क्या री इन्फेक्शन होता है। अभी कहना मुश्किल है, बट कहीं ना कहीं कुछ केस रिपोर्ट्स जरूर हैं जिसमें कि री इन्फेक्शन का दावा भी किया गया है। अब वो म्यूटेशन के बाद दूसरे स्ट्रेन से होगा, कैसे होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी आपको एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, ना केवल अपने लिए बट अपने घर परिवार, अपने बच्चों, अपने बुजुर्गों के लिए। इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। Dr. Malik, a large number of people have, recovered from the infection by being at home itself. They haven't gone to a hospital, or maybe they've had mild symptoms. But now we are at the stage where there's also dengue coming in. There are also other illnesses. We're coming close to October, where the weather changes and we could have mosquito-borne diseases in large numbers. And you're already seeing some evidence of that in your hospitals, where people are carrying both the infections. How does one, first of all, it's dangerous, isn't it, to have both the infections? But does it? How does it affect the treatment, process? Yes. Yes, the treatment almost remains the same, but what is important is that we should try to prevent ourselves from catching these infections. Dengue, these days we are seeing severe fatal dengue infections, especially in young individuals. We are seeing our own doctors fighting the battle of dengue viral infection in ICUs. So it is very important that we realize that it is the most important thing which can help us is the prevention part. That is the best way. Prevention is always better than cure. So we really need to understand this.
protect yourself from the mosquitoes. Always wear full sleeves clothes. Always apply all Odomos or the mosquito repellents. Do not allow any water collection outside your house or anywhere wherever it is possible. So try and discourage the growth of these mosquitoes, because it is going to be a very hard time, not only for us but also for the medical infrastructure. Right. Right. So yeah, we are already dealing with a lot of corona, and on top of that we are having really fatal and bad dengue infections this year. Right. So for past few years we have never seen this fatal kind of dengue infection as we have not noticed in our hospital this year. मैम एक और सवाल हमारे पास आया है, वो लेकर आती हूँ आपके पास. Is it possible that I have COVID but I am not aware of it? Being too busy to fall sick and COVID goes off on its own. I have on and off wet cough due to weather change now during monsoon, as I have bronchitis. So what are the cough syrups which we need to keep at home for wet cough, sore throat in case of monsoon and winter allergies? First and foremost, the cough syrups are mostly placebos. Okay, they actually have no role in preventing your disease or curing your disease. They're only there for the symptomatic relief. So I would not like to recommend any cough syrups for you. It's up to you. If you want to use any of them, you can use, but it is ideally not recommended. Most of the times it is more of for a symptomatic relief, not for a cure or treatment per se. Another thing is, as we all know since beginning, 80% of the people are asymptomatic. So many a times you can have this infection, you can be a carrier of this infection, and still you may not know it. तो ऐसा हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन हो और आपको ना पता चले. और जैसे कि आपने कहा आपको ब्रोंकाइटिस है, आपको ऑलरेडी बहुत बार कफ और इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है. अगर कोरोना में यूजुअली ड्राई कफ होता है, एक्सपेक्टोरेशन यूजुअली नहीं होता है. राइट मैम. तो मैम ये भी इसके साथ पूछना चाहेंगे, इससे पहले मैं हमारे दूसरे गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी सबका तारुफ करा देती हूँ. डॉक्टर रुद्र प्रसाद आचार्य हैं, सीनियर कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट PSRI हॉस्पिटल से. डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका. डॉक्टर साहब ऑल सेट, शुड वी स्टार्ट? राइट. डॉक्टर प्रसाद आपके पास इसी सवाल के साथ आते हैं. हम बातचीत कर रहे थे कि आज ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कराने की, सो दैट एक बेहतर तरीके से हम इस इन्फेक्शन पर कंट्रोल पा सकें. और अगर आपको थोड़े से भी सिम्टम्स महसूस होते हैं और क्योंकि अब डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, आप टेस्ट के लिए आगे बढ़कर आएँ, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? इफ यू कुड थ्रो सम लाइट ऑन दैट. देखिए, आज की डेट में कोविड एक बहुत बड़ा भय पैदा किया है, और ये कोविड होते हुए लोग जाके जो ट्रीटमेंट लेते हैं और उसके बाद लोगों को जो एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद ये बहुत बड़ा डर पैदा किया है. तो लोग क्या कर रहे हैं कि इंस्पाइट ऑफ सिम्टम्स रात को 10 बजे केमिस्ट के दुकान में जाके पैरासिटामोल की दवाई खा के, टेबलेट खा के, फीवर को दबा के घर बैठे हुए हैं. ये सबसे बड़ी बदनसीबी है कि कोविड के बारे में 4 महीने से टीवी, रेडियो, आप कोई भी माध्यम देखो, हर माध्यम से सारे जानकारी देने के बाद भी लोगों को डर के चक्कर में कोई भी टेस्ट कराने को तैयार नहीं हो रहा है. लेकिन हमारा ये निवेदन है कि कोविड अगर सीरियस होने के बाद क्या आप बच सकते हैं? अगर कोविड से सीरियस हो गए तो उसकी मोर्टेलिटी, जो डेथ रेट है, वो 30 से 40% है. लेकिन अगर आप जल्दी से उसको पकड़ के टेस्ट करा के अपने एंटीवायरल, जो आम एक टैबलेट है ट्राबीफ्लू के नाम पे, वो अगर एंटीवायरल जल्दी शुरू करते हैं तो 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर ये देखा गया है कि इसकी सारे सिम्टम गायब हो जाते हैं. तो हमारी पूरी जनता से ये अनुरोध है कि जितने जल्दी से जल्दी जो है, आप को कोई सिम्टम हो, एक्सपोजर के बाद थोड़ी सी भी टेस्ट की गड़बड़ हो, स्मेल में गड़बड़ हो, खांसी हो, जुकाम हो, आम फ्लू की कोई भी सिम्टम हो, इमीडिएटली आप अपने घर के पास कोई भी सेंटर में जाके RT-PCR बा एंटीजन टेस्ट दोनों में से कोई भी एक कराइए.
और जैसे ही आप पॉजिटिव होते हैं तो आपको इमीडिएटली एंटीवायरल और कुछ दवाई जो स्टेरॉइड वगैरह शुरू करने के लिए बताया जाएगा। और मैं आपको सीधे तौर पे बताता हूँ डॉक्टर साहब, मैं आपके पास इसी सवाल को लेकर दोबारा आऊंगी। इस पर हम विस्तार से बातचीत आपसे करना चाहेंगे। आपने एक दवाई का भी नाम बताया, क्लियर करना चाहेंगे लोगों को कि कब इस दवाई का इस्तेमाल करना है, कब नहीं करना, क्योंकि ओवर द काउंटर जो दवाइयां लोग ले लेते हैं उस प्रैक्टिस को भी हम यहाँ पे बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। एक कॉलर ले लेते हैं, किशन सिंह बेदी हैं श्रीनगर से। जी पूछिए अपना सवाल। मैडम जी, जो कोरोना जिस गति से हिंदुस्तान में फैल चुका है, अगर कोरोना की कहीं वैक्सीन भी आ जाती है तो ये कोरोना वालों के लिए ही होगा कि ना, अदरवाइज जो लोग हैं, जो पीपल्स हैं, उनके लिए भी होगा? जी मैम, आपके पास आएंगे सवाल के साथ। जी जी, एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन। मैम ये पूछना चाह रहे हैं कि जब इतने बड़े देश में ये फैल रहा है, जब वैक्सीन आएगी वो सिर्फ कोरोना पेशेंट्स के लिए होगी, आम लोग भी उसके लिए उस वैक्सीन को ले सकते हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें समझनी होगी कि वैक्सीन आने के बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमें आगे देखने होंगे। सबसे पहले हमें वैक्सीन प्रोडक्शन के बारे में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब कोई वैक्सीन एक बार अप्रूव हो जाएगी, उसके बाद इतनी बड़ी जनसंख्या को देने के लिए जो उसका प्रोडक्शन करना होगा, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक बार तो इसलिए जब भी ये वैक्सीन मार्केट में आती है, इट विल बी ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। तो पहले जो प्रायोरिटी बेसिस पे जो दी जाएगी, मोस्ट लाइकली वो कोरोना वॉरियर्स को दी जाएगी, यानी कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जो आपके जो भी फ्रंट लाइन सैनिटेशन वर्कर्स हैं, या जो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स जो कोरोना वॉरियर्स हैं, आप सबसे पहले प्रायोरिटी पे ये वैक्सीन उनको देना चाहेंगे। उसके बाद जो बाकी हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, जो एल्डरली लोग हैं, डायबिटिक्स हैं, उनको मिलेगी। धीरे धीरे करके ये सबको मिलेगी। तो इस सारे प्रोसेस में टाइम लगेगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि अगले 5-6 महीने में हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज बचा सकती है वो सोशल वैक्सीन है। तो प्लीज उसका पालन करें, उन नियमों का पालन करते रहें, मास्क पहनते रहें, हाथ धोते रहें। अभी भी सबसे इम्पोर्टेंट बचाव वही है। बिल्कुल, सबसे बड़ी वैक्सीन अभी यही है और वो हमारे हाथ में है, हमारे पास मौजूद है, जिसको हमें फॉलो करना है। डॉक्टर प्रसाद, आपके पास वापस लौटती हूँ। हम टेस्ट की बात कर रहे थे, मेरे पास 2 सवाल आए हैं जो इसी के साथ कनेक्टेड है। केजी भट्ट साहब है, वो खुद एक जीपी हैं और वो ये कहना चाह रहे हैं कि आई हैव बीन एडवाइजिंग माय पेशेंट्स इन वेन, हाउ आर यू गोइंग टू कन्विंस देम दैट गो एंड गेट योर सेल्फ टेस्टेड? एंड एक और कॉलर है, पूछना चाह रहे हैं कि हाउ लॉन्ग वन कैन फील सेफ फ्रॉम कोविड आफ्टर गेटिंग टेस्टेड नेगेटिव? तो देखो, टेस्टिंग नेगेटिव मीन्स डज नॉट मीन कंप्लीट प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोविड। आपको अपने आप को टेस्टिंग नेगेटिव होने के बाद आप अपने आप को जैसे नॉर्मल टाइम में प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे मास्क लगा के और सोशल डिस्टेंसिंग जो हमारा तीन पिलर है, वो तीनों पिलर को मेंटेन करेंगे तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो कोविड नेगेटिव डज नॉट मेक यू दैट यू आर नॉट गोइंग टू हैव कोविड। कोविड नेगेटिव मतलब है कि आज तक आपको कोविड नहीं हुआ है, फ्यूचर के लिए 48 से 72 आवर्स के बाद आपको फिर कोविड हो सकता है, वो कोई नहीं कह सकता। दूसरा, जो टेस्ट कराने के लिए एक अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है। जितने जीपीज हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं जो कोविड के बारे में इतने ज्यादा आज की डेट में नॉलेज लेते हैं, तो ये सबको मेरी एक ही अनुरोध है कि अपने आस पड़ोस जितने भी लोग हैं, जितने दोस्त हैं, जो भी हैं, उनको मोटिवेट करिए कि कोविड टेस्ट करेंगे। टेस्ट कराने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर नेगेटिव आया तो आप सेफ हैं, आपको पता चल जाएगा। पॉजिटिव आया तो अर्ली एंटीवायरल ओवर द काउंटर नहीं मिलता है। एंटीवायरल के लिए आपको कोविड सेंटर में ही जाना पड़ेगा या कोई भी डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा जो कोविड सेंटर में काम करते हैं, तब जाके एंटीवायरल ड्रग आपको मिलेगी। और वो एंटीवायरल के साथ में अगर आप जल्दी से शुरू करते हैं, ये देखा गया है कि 3 से 4 दिन के अंदर जो कोविड के सिम्टम्स है वो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर 3 तरह के होते हैं। मॉडरेट और सीवियर होने पे आपको अस्पताल में एडमिट होके इंजेक्शन रामसिटिविर जो एंटीवायरल का इंजेक्शन है वो देना पड़ता है। लेकिन जितने माइल्ड सिम्टम वाले हैं वो अगर जल्दी से सिम्टम आते ही अगर फ्लावीफ्लू जो फ्लावीपिविर है वो शुरू कर दिया, तो ये देखा गया माइल्ड के बाद ये कंप्लीटली गायब हो जाता है। लोग क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं कि माइल्ड सिम्टम में पैरासिटामोल खा के उसको दबा के रखते हैं
जब वो मॉडरेट में पहुंचते हैं तब जाके हॉस्पिटल के पास जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं। उससे क्या हो रहा है कि हमारे पास जो डायरेक्टली जो मॉडरेट और सीवियर केसेस डायरेक्टली आ रहे हैं, जो थोड़े दिन वार्ड में रहते हैं और 3-4 दिन के बाद आईसीयू में चले जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जल्दी से डिटेक्शन करना दो तरह से फायदेमंद है। नेगेटिव है तो आप टोटली सेफ हो, अगर पॉजिटिव है जल्दी एंटीवायरल लेंगे तो माइल्ड सिम्टम में ही आप अपने आप को कोरोना मुक्त कर सकते हैं। आप मॉडरेट और सीवियर की ओर जाएंगे ही नहीं तो आप आईसीयू और ये क्रिटिकल केयर मतलब आईसीयू वेंटिलेटर ये सब की जो कोकुआ भय बना हुआ है वो भयभीत होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन टेस्ट में आके अगर खाली पैरासिटामोल लेके अपने बुखार को दबा के रखेंगे तो ये हो सकता है कि जब आप हॉस्पिटल पहुंचे आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाए, 93 से कम हो जाए और आपको लेके आईसीयू के अंदर ले जाना पड़े। ये सब चीज देख के मेरा ये मानना है सारे पब्लिक और जनसाधारण को टेस्टिंग की जो अंदर की इनहिबिशन है, जो दुविधा है, उसको आपको खत्म करनी चाहिए और टेस्टिंग जितने ज्यादा से ज्यादा कराओ और अगर पता चलता है उसका ट्रीटमेंट लो। अगर जो भी आप आइसोलेट करोगे तो आपके घर के फैमिली मेंबर ही कोरोना से बचेंगे। इसमें आपके घर के फैमिली मेंबर को पॉजिटिव कराने में अगर आपका योगदान है तो सोचो आपके मन में क्या गुजरेगा। तो इसलिए मेरी मानना है कि टेस्ट कराएं, टेस्ट कराने के समय कोई दुविधा ना रखें। घर में जितने पॉजिटिव लोग हैं वो आइसोलेट हो जाएं ताकि नेगेटिव लोगों को ना हो। और एंटीवायरल की जो गवर्नमेंट ने या सरकार ने और जितने प्राइवेट हॉस्पिटल की कोविड सेंटर में जितनी मात्रा में मिलती है, जितनी सुविधा है, उसके यूज करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने मुझे लगता है इतना विस्तार से समझाया, हमारे दर्शक अच्छे से सिम्टम से आप बिल्कुल कोरोना मुक्त हो जाएंगे। और हमारी सबकी ये मनोकामना है कि दिसंबर, अभी कम से कम सितंबर नहीं तो 2-3 महीने में कम से कम ये कोरोना से हमें मुक्त होना पड़ेगा ताकि हम नॉर्मल लाइफ जी सकें और हमारी सारी इकोनॉमिक वायबिलिटी ये सब चीज वापस आ सके। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इतने साफ शब्दों में, लेमन लैंग्वेज में इतने विस्तार से आपने समझाया, मुझे लगता है इससे ज्यादा सही तरीके से शायद ही कोई समझा पाए और दर्शकों को समझना होगा कि कितना जरूरी है टेस्ट कराना। Dr. Malik, you know there are some people who have for the sake of their own safety have not come out of their houses since let's say March or maybe since the lockdown, and now that everything is happening, you know, they may be tempted to come out. What would you advise? There are elderly people, maybe senior citizens who have been depending on others, you know, for their supplies. What would you advise people like that at this time? I mean, should they wait a little longer because they waited this long already? Yes. So if it is possible and they can wait for a few more months, especially in this transition phase when the weather is changing and there are so many other infections as well as present in the community. So it is very important, if it is possible for them, they can wait inside their houses even for like few more months. But if it is not possible, then they have to be very careful, take all those precautions, always cover their mouth and nose whenever they step out of their house, always follow cup etiquettes, always maintain social distance, always keep following the hand hygiene part. So these are the standard precautions which are same for everyone, whether you are a high risk individual or you are a low risk individual, because risk of catching the infection is same for everyone. The problem is the elderly people, they will have more of complications. So then getting an infection is same, the chances are same, but then having complications and dying is much more. So that's why they need to be more careful. Right, ma'am. Ma'am, so 2 questions online quickly I would like to take it. Rahul Malhotra पूछना चाह रहे हैं, if a 65-year-old positive patient is hospitalized and BP and sugar patient is CRP was increased to 39, after anti-inflation medicine CRP is 16, what is the ideal CRP in a COVID patient? Plus another person wants to ask if one side of the nose is blocked along with cold is also symptoms of COVID, do I need to go for the test?
the first question I would like to go about is Yes, that ma'am. you don't have to worry about these lab investigations. Okay, CRP is showing a decreasing trend. That is a good sign. We don't have to treat it to an exact value. Okay, we have a normal range for that, so that it will eventually come. But once it has shown a decreasing trend, that is what is promising enough. So you don't have to specify that up to this target it's fine or up to this. It has to be a declining trend. Okay, as the inflammation will settle down, the CRP levels will also come down. So you don't have to worry about the levels, and these are for the doctors to assess. It is not for the general people. Like D-dimer, I've seen very often everybody is talking of D-dimer. Everybody is getting it tested, just like that. So it should not be in that manner. It should be when the doctor advises. If you are in a home quarantine, then you need not do a D-dimer test. Only when you are a moderate disease or a severe disease patient and you are in a hospital setting, then there's the importance of Dr. this Dr. D-dimer. Malik, we are running short of time, so if you could briefly answer the second question. What was the second question? Can you It please was like repeat? one side of nose blockage along with Yeah. cold is also symptoms of COVID. Do I need to go for test? Age Yes, 26. it can be. It can be. It can be. It can be. So All you should right. better get your It's better to Okay. go for the test. In fact, All right. people should be going for tests even if they have symptoms, because it's a sign, and it also will help in our Yes, tracking and tracing and trying to contain the virus. And there are so many easy facilities now for testing. Right. So we leave it there. Thank you very much, Doctors Rudra Prasad Acharya and Dr. Rupali Malik, for joining us here on COVID Doctors Speak and helping our audience understand what they need to do in these difficult times. राइट तो आज के लिए बस इतना ही. जिनके सवाल रह गए हम कल फिर हाजिर होंगे. आप फिर अपने सवाल लेके हमारे साथ जुड़ सकते हैं. फिलहाल आज इतना ही. नमस्कार. Namaskar.